डॉक्टर शादिया कुलसूम के है जी? आप कौन है? मेडिसिन लेनी है। मरीज है जी। चेक कर बंद कर यार, बंद कर। मैंने कहा इसको बंद कर, बंद कर इसको, बंद कर। मैं पाड़ के रखा तेन, मैं तेन को पाड़ के रखा, मैं तेन पाड़ के रख दी। मियां नहीं लड़ना नहीं, मियां लड़ना मैं बाबू पुलिस आ रही है, निकल यहाँ आ रही है पुलिस। निकल यहाँ से और तारू नहीं जाना, नहीं जाना ड्रामे बाजो, नहीं जाना। चल बाहर, मेरी प्रॉपर्टी है, बाहर निकल भाई। मैं बाहर निकल, आगे आओ, आगे बंदे ने ड्रामे कीता यार। कॉल करो, निकल बाहर। खान भाई से कॉल करो। चल चल कॉल कर दिया कौन फोन सिस्टम नहीं आए, कौन नहीं करता, बाहर निकल। मैं तेरे को बाहर निकल, नहीं जाना बदमाश, बाहर निकल तो पापा है मेनू। बदमाशी 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 जो करने का है होएगा। और बच्चे आराम ना कर, होएगा। इस तरह नहीं करेगा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੋਕੋ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ, सारे डॉक्टर ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ माइक से ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ। चली गई होना और टाइम पे लगी है। ਮਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? केड़ा मरीज ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। और भाई तुम सारा कुछ बांध, हन बांध कर, ਬੰਦ ਬੰਦ तेरे को बांध कर। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ तेरा अगली उसे भी रुके, बड़ा प्रॉब्लम। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ मैं तेनू कह ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ओ कुछ नहीं हुंदा, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बदमाशी में बदमाशी तो अंदाज है। ਪੀਤੀ ਆ ਪੀਤੀ ਆ ओ पीती चुप कर, पीती पीती है के नारे आ। मामा ਪੀਤੀ ਆ। पीती मैं तो छड़ी है, ਡਾਕਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਫਾਈਟ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? निकल बाहर तो ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੰਦ ਫਾਈਟ ਤੇ। ओ कारवां में बोल क्या हो कितने लोगों को तोड़िया क्या हो क्यों मार सकते? आराम से बात करो, शराब पी के मरीज चेक कर रहा है। आराम से बात इधर से। करें भाई, आराम से बात। डॉक्टर ढूंढ गई है, मेरा माँ बच्चा जी, बाहर निकला, डॉक्टर ये बदमाश है। केड़ा केड़ा डॉक्टर ये बदमाश है, ढूंढ गई है। ये बदमाश है। ड्रामे करना मैं काल करें जी बंद फाइट अली भाई एक मिनट, तेरा क्यों हॉस्पिटल में आई हो ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਬਕਵਾਸ ਹੋਰ ਕਰ, ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ। यार आराम से बात, आराम से बात। यार रजिस्टर ही नहीं है ये। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वैसा वन फाइव से कॉल करो, आराम से बात करें, वन फाइव से कॉल करो। आराम से बात। ये ਹੁਣ ਜਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। अंदर कैमरा लेके सारे मरीज चेक किए जा रहे हैं। चल बाहर निकल, बाहर निकल, तेरे को बाहर निकल, अच्छा बराबर के बाहर निकल, मार 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 एक मार निकल एक मार मार एक मार एक मार खतरे नहीं छोड़ दे यार उन्होंने समझाओ, इन्हों फड़ी जाते
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਗੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਖਾਲੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਆਓ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾਰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓ ਯਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਓ ਇਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਓ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਦਫਤਰ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਆਓ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਚਾਚਾ ਆ ਛੋੜ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਓਏ ਇੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਫੱਟਿਆ ਫੈਰਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇੜ ਦੇ ਪਏ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬ్రో ਇਹ ਨਿਬੜੀ ਗੱਲ ਡੀਐਸਐਨ ਜੀ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਡੀਐਸਐਨ ਜੀ ਲਾਈਵ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਠਹਿਰ ਕਾਲਕਾ DSN ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਰ ਮੁਤਲਕਾ SHO ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ कोई डॉक्टर नहीं अभी भी डॉक्टर नहीं ओ है मेरी बात सुन ये मरीज चेक कर रहा है सारे मरीज भाग गए हैं ये मरीज चेक कर रहा है नहीं मैं दवाई सारे माँ जी मरीज भाग गए हैं ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜੀ, ਲੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝੂਠ ਮਾਰਨੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਵੜੀ ਹੈ ठीक है ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਕਾਰੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਘਾਹ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ਼ਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਏ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ मेरा बच्चा और खा ले सोने पहले मेरा बच्चा पानी पियो 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 भाई आप साइड पे ले जाए पानी नहीं पीना मैं पानी नहीं पीना मैं ठीक हूँ अच्छा ठीक मैं ना 2 मिनट ना फिर दांत टूट गया मेरा तुम का पानी पियो ये आप जी आओ इधर सुन पुत्र मेरी गाल माँ जी इसको मैंने कहा क्या है अच्छा ये बंदे ने आके मारा और छोड़ दिया कहा क्या उसे कोई एक बात भी कही वाली कौन है आपका ही है तो मैंने की है मैंने आपको क्या कहा थोड़े बैठे ने मैंने कुछ कहा अभी देख ये देख वन साइड तो नहीं ना बात होती नहीं उसको मैंने कहा क्या है मेरी बात सुने अगर आपने बात की है तो वो आते ही तो आपके साथ शुरू नहीं होगा कोई तो आते ही शुरू हुआ रिकॉर्डिंग यार अली जो भी है मैं अली नहीं हूँ कौन है अभी की हो वो हमारी अपनी बात आज से शुरू यार कोई तो बात हुई होगी कोई बात ही नहीं उसने कैमरा तोड़ दिया यार आप भी भाई हैं वो भी भाई हैं वो भी हमारे मोहल्लेदार हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन बात हक की करनी चाहिए हाँ जी और मेरा बेटा ये कौन सा है अच्छा गाड़ी के अंदर के पता नहीं कहते आओ ये डराना चाहिए वाले मैं कौन मैं क्या मैं थकी मैं ठीक नहीं मैं नहीं आ सकती ये कौन ये गाल से पहले सुन ले सुंदर मिल है गाल से सुन ले बनावा खाना लगता है मैं चुप कर पे गाल सुन ले मां जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ हक दी गल करी नहीं ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ हेलो ਖਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ उसका गल हो जाए जी जी वालेकुम खलोतियां ते कारी ने ਅਸੀਂ ਵੀ कह रहे आप जी आओ मियाँ जी ठहर के लड़ाई होगी एक जगह पे मैं जरा कर दा गल मैंने कहना कारी के तुसी आओ मैं खाला मैं नहीं आ सकती आपको मैं शब्द की बात शुरू बेटा आप तो बैठ चलो चलो बच्चों चलो बाहर ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬਾਸਲੀ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਰੂਜ ਕਿੱਥੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਤਾ, ਲੋਗੋ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਦਾ ਪਿਆਵੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਦੀ। ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ जी आया उसने लाख रुपए की डिमांड यार अली कौन है? आप लोग असली नहीं जानते हो अली ਨੂੰ अली किस लो आ रहा है ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ यार ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦਬਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਜੋ ਮਰਜੀ ਅਲੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਅਜਾ ਸਕੂਲ ਕਰੇ ਚਲੋ ਛੱਡ ਯਾਰ। ਸਮਝਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। आप कितना प्यार से खड़े हो, मना करो इसे यार। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं आप। सामने ना आया बंदा ऐसे नहीं बात ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ऐसे नहीं बेटा बात करते, जब बड़े यार बड़े कौन यार उसने मुंह फाड़ दिए बड़े इधर खड़े हुए थे मुंह फाड़ दिए उसने यार उनकी बात सुन रहे हो? यार माँ जी को बात यार पता ही हमारी भी माँ है, हमारी भी मेरी माँ है। वो देखो वो कितने प्यार से बात कर रहे हैं। यार उन्हें मुंह फाड़े भाई पहले यार बेटा बात जब बड़े कह रहे हो ना तो यार समझ मेरी गल सुनो मेरे आपने 1-5 पे बात की। मेरे सामने मेरे बड़े का मुंह फाड़े मैं की कर रहा बेटा आपने 1-5 पे बात वो की हो गई तो वो आ उन्हें इधर ना रहे हो जाएगा। उन्हें इधर ना लेके हो बस मैंने उनको अंदर बैठा दिया है ना, क्यों ऐसे कर रहे हो यार? वो बड़े समझा रहे हैं, कुछ समझना चाहिए यार। आप भी हमारे बच्चों की तरह अच्छा तारक डीएसएन जी कुछ वही कह रहा हूँ, आप भी हमारे बच्चों की तरह हो भाई। ਤੇ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ वो समझ वो सानू अली अली सुनाई जा रहे हैं बेटा कुछ नहीं होता, आराम से बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ अच्छा डॉक्टर साहब बनावा का ये इलाका है सूत्र मंडी, सूत्र मिल। काइंडली यहाँ पे DDOH कोई डिप्यूट करें। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पे खेप पकड़ी तो हमें चाहिए वो। जी सूत्र मंडी ये है, सॉरी सूत्र मिल। जी मैं यहाँ पे हूँ। ये मेरा बनावा किस टाउन में आता है आपके? हाँ जी तो ये बनावा के साथ सूत्र मिल है इलाका। और 9 बजे ना छुट्टी मिली। यार बताएं ये डॉक्टर CEO है, इनको बता रहे हैं रखो। ये डॉक्टर साहब ये मनावा चलो फिर आओ मेरे पानी पियो आ जा। तो वो लेके आओ उनका गल पानी पियो आके। कर। हाँ जी मैं इतने ही बैठा हूँ। नहीं वो भी ऐसे ही है। आप ही बैठ जाएं, उनकी बात सुन ले, फिर इधर बैठ जाना, कोई बात नहीं है। आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि बैठे आ जाएं आप। जब नौकरी का मामला करा सुकून से करा करो। अल्लाह ताला दे दे ऐसे ही। माँ जी मेहरबानी बहुत हाँ, ऐसा नहीं देखो जी तो 5 घंटे लगे ना साढ़े तो रौला ही रौला बन गया एकदम सौ शुक्रिया। यार अली मिर्जा का नंबर है, कॉल करो। तो बंदा मारने का फिर कौन कौन मारेगा? है मारेगा बंदा बदमाश लग रहे हैं डॉक्टर ये चल रहा है ये भाई चल रहा है यही चल रहा बस ये यार की इलाका है? सूत्र मिलने बस सूत्र में स्टाफ है, सूत्र में सूत्र मिल स्टाफ ठीक है यार, लिंक दे यार। बात करें नाज़रीन ये सूत्र मिल बनावा का इलाका है, गालबन यहाँ पर जो है वो वाघा टाउन है। और ये डॉक्टर शाजिया कुलसूम है, MBBS DGO लिखा हुआ गायनाकोलॉजिस्ट, यहाँ पर नहीं मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो क्वाक है जाली डॉक्टर जो बना हुआ है इस मोहल्ले में, अभी मेरे ऊपर ईंट के जरिए हमला किया। अभी आएगा दोबारा, आपको दोबारा दिखाते हैं, आएगा दोबारा हमला करेगा। ये डॉक्टर नहीं है,
जब हम यहाँ पर आए हैं और हमें जो इसके खिलाफ शिकायत थी उसके ऊपर आते ही इसने कोई बात नहीं की। सबसे पहले लोगो और माइक को तोड़ा है और इस कैमरे को तोड़ा है। तो ये जो शख्स है, इस हवाले से हम सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए लोगों को कि जब ये गलत इंजेक्शन लगाते हैं, जब बंदा मरता है तो फिर सरकारी अस्पताल बड़ों में लोग जाते हैं। अब ये शख्स जो है वो बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि नशे में है ये। अभी आएगा ये, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुझे मारेगा, मारेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये आएगा ये, अगर इसको कोई ना रोके तो ये मारेगा। इस वक्त ये अपने आवास में नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ इस शख्स को। और ये क्योंकि हम इनके साथ लड़ नहीं सकते, हमारा एक काम है अवेयरनेस देना लोगों को। और ये वो शख्स है कि यहाँ पर जो एक MBBS, इसका भी हम चेक करेंगे कि इसका यहाँ पर लिखा हुआ ये यहाँ पर होती नहीं है, ये किस अस्पताल की है, कहाँ से है और इनके नाम पर। आप इसका रवैया देखें, ये देखें बिल्कुल ये नशे की हालत में है, मैं गारंटी देता हूँ ये नशे की हालत में। मारेगा, ईंट मारेगा, मुझे मारेगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। वो ये कुछ चीज लेके आएगा, मारेगा मुझे बिल्कुल, खुदा की कसम। पहले ईंट के मेरे ईंट से मारा इसने, मैं खुदा की कसम कह के कह रहा हूँ कि ईंट से मारा इसने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने एक सांस भी यहाँ पर रखा है। ये देखें भाई, कैमरे को हाथ नहीं लगाना। पहले अपना रवैया दुरुस्त करो। लाख तुम्हारी औकात है, लाख तुम्हारी, एक मिनट नहीं यार, एक लाख तुम्हारी औकात है। दिखाएं क्या है इसमें, दिखाए ना मुझे, दिखा रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ। जी डॉक्टर की ना अल्ट्रासाउंड वो रेटिंग देख ली ना, डॉक्टर MBBS चढ़ जाएगी ना, उसकी रेटिंग लिखवा ली सीधे अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अमरीन IV इंजेक्शन, हमारा अल्ट्रासाउंड, और क्या है। और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर शाजिया किधर है डॉक्टर, आ जाती है वो दोबारा आ जाएगी। किधर है किधर है नाज़रीन, ये शख्स जो है ना, ये जो शख्स इसका रवैया देख ले, कोई मसला नहीं। जो मुझे गाल देगा उसको अल्लाह ताला वैसे ही उसको गाल दे, वैसे ही मेरा ये रवैया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ऊपर ईंट से हमला किया, कैमरा तोड़ा, धक्के मारो भाई, मारो, इस तरह नहीं जाएंगे, इस तरह नहीं जाएंगे, इस तरह नहीं जाएंगे। मामा ने बाहर लाख रुपया दे दो, पीछे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं होते ना, ਅਸੀਂ नहीं यार किस तरह ਅਸੀਂ नहीं जा बेटा वो कैसे और किस तरह हो गया यार, भाई ने आया बोलाओ, तू बोलाओ ये कह रहे हैं भाई हम नहीं जानते। हां वो तो बाहर निकले, ये प्रॉपर्टी नहीं बाहर निकले, दिशा तक यार और तो बाहर शादी में निकले, चाहते में शादी का जो भी पस्तून ना जंग पुख्तून जो भी सब तू तो लेना है, नहीं बता लाख रुपए मानो, अच्छा वाली चार मोबाइल में भेज दो, तुम ना भेजा ले जाना सिटी बॉडी को करा ना, सिटी बॉडी टूट गया ऐसे चलो भाई, अगर राशि का ना, अगर राशि का मैं पूरी का तो टाटा अगर पे हो से नहीं। हेलो हेलो वासलाम, वो तेन DS जी का क्या मुतलका SHO लैके आ जरा इत्थे, मुतलका SHO नूं जरा फोन कर जल्दी आवे, 10 अली मिर्जा नूं यार, जेड़ा काम करो तुसीं। नहीं ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, नहीं कोई गल ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ। हम उधर दरवाजा खुला रहेगा, ਚਲੋ ਆਇਓ यार नहीं कोई गल नहीं होगी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। नहीं कोई गल नहीं, आ जा इधर बाहर, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो बेटा आप लोग भी तो ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ तो ਹੋਏਗਾ, बैठ ही नहीं रहे, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ दरवाजा ਹੋਏਗਾ। ना बंद करे बैठे फिर आप। ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, चल इधर आओ बेटा, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। नहीं दरवाजा बंद होता है।
बेटा सारे ना आओ यार। ये तो आपके महल्ले के लोग हैं यार। भाई कुछ नहीं, इधर आप चले जाए। बेटा नहीं आना चले ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਦ ਸਪਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਾਹਦ ਸਪਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਦਾ ਜਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਦਿਖਾ ਨੂੰ ਇੱਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਧਰ ਆਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਭਈਆ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ बाजी तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? इस तरह मसला आप चली जाए, आपका मेरी लड़ाई नहीं है, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। मेरे ईंट मारी इसने, मेरा दांत तोड़ा है, कहता मारी है। ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਲੈ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਦਾਨ मेरी बात सुनो। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? एसपी साहब, एसपी कैंट ਨੂੰ ਯਾਰ, एसपी कैंट, ऐसे नहीं मसले लोग। एसपी कैंट ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯਾਰ ਯੂਸਫੀ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨਾਵਾ ਥਾਣਾ ਮਨਾਵਾ। ਬੈਠੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੇ आप एफसीपीएस कहाँ से एफसीपीएस है आप डिप्लोमा ऑर्डर है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन किधर है? एमबीबीएस कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे नर्सिंग आपको पता है किसी चीज का क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ये LH दिखाएं मुझे, मेरी वजह- आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? ਉਹ भजन मेरी ग्रेजुएशन है। कहाँ से ग्रेजुएशन है आपकी? दिखाएं मुझे। मेरी गल- ये मरीज चेक कर रहा था, मरीज चेक कर रहा ठीक था। है। सारे अट मारी उन्होंने मेरे। ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਬੈਠੋਗੇ ਸਹੀ। ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ आपका क्या नाम? डॉक्टर शादिया कुलसूम। आप इस तरह मसला हल ना करें, आप अपनी जाती लड़ाई ना बीच में लाएं। जाति लड़ाई आप तो बाजी है ही नहीं, जाए आपका रौला ही नहीं है। रोला की बात नहीं है। अगर बहनें मसले हल नहीं कराएंगी फिर कौन कराएगा? ईंट मारी ना उसने, उसका रवैया देख लें आप। ये गलत है। अभी भी उसका रवैया यार। पहले ना मैं ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂ। मैं इस बंदे ने मुझे सब नहीं बैठ के मसला हल कर लो। बैठे इसको, अगर इसने आप मुझे गाल निकाली नहीं निकाली, माँ बहन की, नहीं निकाली। बैठे इसका पहिया चेक कर लें। अगर इसने एक दफा भी किया, नहीं किया। चलो जी बैठे। सर इन्हें दौड़ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ। जी बिल्कुल, इस वक्त इस क्लिनिक पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लाहौर जोन की टीम पर बाकायदा तौर पर कातलाना हमला किया गया, ईंटें मारी गई। और ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये रजिस्टर्ड जो है वो ये एक अस्पताल नहीं है, चूँकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अगर किसी अस्पताल को रजिस्टर्ड करता है तो वहाँ पर जो बाकायदा तौर पर एक क्वालिफाइड मुस्तनद डॉक्टर MBBS और स्पेशलाइजेशन जो जिस डॉक्टर ने की थी वो डॉक्टर वहाँ पर बैठता। लेकिन बदकिस्मती से इस क्लिनिक के ऊपर किसी किस्म का कोई डॉक्टर नहीं था। जो यहाँ पर क्वैक बैठा हुआ था वो भी जो उसका जो रवैया था और उसका जो जिस तरह वो लग रहा था वो ऐसे ही था कि नशे में था। बाकायदा तौर पर मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर उसने कातलाना हमला किया, मुझे बाकायदा तौर पर ईंटों से वार किए, मेरा दांत एक जख्मी हुआ है और ब्लीडिंग हुई है। तो ये एक सारा मामला है कि इस वक्त भी लाहौर जैसे बड़े शहर में जो है वो अतायत है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि मुतल्लका शख्स जो नवीद नामी शख्स है जिसने हमला किया उसको पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया इस क्लिनिक से। और उसके बाद यहाँ पर DDOH वाघा टाउन की जानब से टीम यहाँ पर मौजूद है, इसको बाकायदा तौर पर सील किया जाएगा। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो क्लिनिक है बिल्कुल ये क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर का नाम तो लिखा हुआ है, डॉक्टर शाजिया कुलसूम, MBBS DGO डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। और जब हमने आकर ये सिर्फ बात की और पूछा है तो उसके बाद ही जो है वो यहाँ पर जो है वो ईंटों के वार किए गए, हमें मारा गया। नाज़रीन ये भी देख सकते हैं कि ये लोगो है जो बाकायदा तौर पर टीम के साथ होता है, माइक के ऊपर लाहौर रंग का जो लोगो है इसको पकड़कर तोड़ा गया, ईंट मारी गई, कैमरा तोड़ा गया और ये सारा रवैया है। और मुझे ये इस शख्स का अगर मेडिकल रिपोर्ट अभी करवाई जाए, मेडिकल टेस्ट करवाया जाए तो यकीनी तौर पर ये नशे में मुब्तला था। और नशे में मुब्तला होकर बैठकर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था और यहाँ पर मरीज चेक कर रहा था। तो ये एक जो है वो लोग हैं जो कि क्वैक है, ताई है, जाली डॉक्टर हैं,
मैकेनिक है, इंसानी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब इस तरह के डॉक्टर इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मरीज़ों को जब गुर्दे फेल होते हैं, जब मरीज़ बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो अहले इलाका जो दीगर लोग हैं उनको भी हमारा साथ और हेल्थ की टीमों का साथ देना चाहिए। कम से कम ये जो अताई है इनकी जो ये जो फ़रोग पा रहे हैं इसका खात्मा हो और जो मरीज़ों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं उसका भी खात्मा हो। नाज़रीन, ये जो नवीद नवाज़ ये जो ताई डॉक्टर है और मनावा सूत्र मिल बाज़ार में एक बड़ा क्लिनिक जो एक बड़ा अस्पताल जो इसने बनाया हुआ है, आज हमने इसके ऊपर जो है वो छापा मारा और जो इसकी हरकत थी जिस तरह इसने हमारे साथ किया, इसके बाद जो है वो इसके बाद अगली आप हम इसकी पूरी स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पर इससे पहले भी हमारी एक लाहौर पूछता है कि पूरी टीम है लाहौर पूछता है कि जो एंकर हैं अली हमज़ा, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो पहले रैकी की और उसके बाद उनको भी यही बताया गया था उनके सोर्सेज की जानब से कि ये जो है वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, बल्कि इसके पास किसी किस्म की डिग्री नहीं है। और एक पूरा अस्पताल जिसके ऊपर डिलीवरीज, गायनी के केसेस और सर्जरी के केसेस और जिन डॉक्टर्स के नाम लिखे गए हैं वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं होते। और जब मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा तो वो उनमें से एक डॉक्टर अब्दुर्रहमान लिखा हुआ सर्विसेज अस्पताल का, तो वो सर्विसेज अस्पताल में आज तक तो नहीं हुए। और इसी तरह एक और डॉक्टर का लिखा हुआ, तो वो भी उसने कहा जी कि वो सर गंगाराम अस्पताल से उसका तल्लुक है, लेकिन वो डॉक्टर सर गंगाराम अस्पताल की नहीं निकली। अब सूरत हाल ये कि ये अकेला शख्स जो है वो एक बड़ा अस्पताल चला रहा है। और अगर इससे जब क्वालिफिकेशन की बात हम करते हैं तो इसका एक इंटरव्यू इससे पहले चल चुका है और अली हमज़ा एंकर हैं लाहौर पूछता के बड़े मरूफ एंकर हैं। इन्होंने मुतअद्दिद बार इसी तरह के बड़े केसेस, ये भी तायद के ख़िलाफ़ बड़े प्रोग्राम करते हैं, इनके ऊपर भी बड़े टैक्स हुए हैं, लोग मारने की कोशिश करते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि ख़ास तौर पर जो नवीद नवाज़ है मनावा बाज़ार वाला जो जिसका अस्पताल है शियान मेडिकल सेंटर, अली भाई ये बताइएगा कि ये आपने इसके ऊपर जब इसका विजिट किया क्लिनिक का, तो आपके साथ क्या बात हुई थी क्वालिफिकेशन के हवाले से, आपको उसने क्या क्या बताया? अच्छा मियाँ साहब, सबसे पहले मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि जिस तरह से आप पर कातलाना हमला किया गया और जिस तरह से वहाँ पे ईंटें मुक्के और जो चीज़ उसके हाथ में उसने चलाई, मैंने जब ये क्लिप देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान रहा, क्योंकि मैं जब गया था तो मैंने भी अपने टोन बड़ी सॉफ्ट रखी और उसने भी, यानी कि बीच में एक दो बार हाइपर होने की कोशिश करता था, फिर कभी मिन्नतें करता था कि अली भाई बस कर दें, आपकी मेहरबानी है फलाना। मियाँ साहब हुआ ये कि मैं इनके बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आई हुई थी, हमारे सोर्सेज ने बताया कि ये बंदा बिल्कुल ही, इसके पास कोई मंतक, कोई लॉजिक, कोई जवाज़ नहीं है बतौर यहाँ पे डॉक्टर बैठ के काम करने का, लेकिन यहाँ पे बैठ के लोगों को स्टीरॉइड्स के टीके लगाता है। बाकायदा तौर पे एक मिनी हॉस्पिटल है जहाँ पे 2 से 3 बेड मौजूद हैं, उसकी एक फार्मेसी मौजूद है। मैं गया तो इनके पास बड़ा रश लगा हुआ था, ख़वातीन मौजूद थी और ये मैं हल्फन ऐनी शाहिद हूँ कि ये ख़वातीन को बाकायदा तौर पे इंजेक्शन लगा रहा था। आपको पता है कि इंजेक्शन एक अताई लगा रहा है और आपको पता है कि उसके लिए कितना जहरीला साबित हो सकता है। बहरहाल मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि 1 मिनट रुक जाए, मैं ज़रा पेशेंट चेक कर लूँ। हमने इनकी प्राइवेसी का भरपूर अंदाज में ख्याल रखा। मैं उतनी देर में बाहर एक बच्चा मौजूद था जिसकी उम्र मेरा ख्याल है हार्डली 12 साल नहीं थी, और उसने मुझे बताया कि मैं 8वीं जमात का स्टूडेंट हूँ और वो बतौर फार्मासिस्ट वहाँ पर काम कर रहा था। और वो 8वीं जमात का एक बच्चा इसके अस्पताल के अंदर बतौर फार्मासिस्ट काम कर रहा है और उसके अंडर एक पूरी फार्मेसी दवाई थी और वो सामने वो पूरियाँ बना रहा था। और ना वो बच्चा किसी चीज़ को ना यानी कि कूट रहा था, मतलब कि पीसने की कोशिश कर रहा था। मैं कहा बेटा ये क्या कर रहे हैं, कोई दवाई बना रहे हैं? उसने कहा नहीं ये तो मैं मछली की खुराक जो है तैयार कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा आप यहीं पे दवाइयाँ भी बना रहे हैं, मछली की खुराक भी वो तैयार कर रहे हैं? उसने कहा बस वो बच्चे से तो हमारा कोई गिला ही नहीं है, वो तो एक छोटा बच्चा है। आपको पता है कि गुर्बत के जो मामला आते हैं बच्चों को वालिदैन भेज देते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता रहे। अब वो मछली की दवाई बना रहा है, उधर से डॉक्टर साहब ने उसको बेल दी, वो पर्ची लेके आया, तो उसी तरह से उन्हीं हाथों से वो अद्वयात बनाने लग गया, पूड़ियाँ और वो जो भी बोतलें बना रहा था। हमें डॉक्टर साहब ने 5-10 मिनट वेट कराया, हम खड़े रहे। फिर मैं गया, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम जी नवीद नवाज़ है। मैंने कहा आपका नाम नवीद नवाज़ है या डॉक्टर नवीद नवाज़ है? इन्होंने कहा जी मेरा नाम डॉक्टर नवीद नवाज़ है। मैं कहा सर आप MBBS? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप क्या हैं? उसने पहले कहा कि मैं LHV हूँ, फिर कहता मैं LHV भी नहीं हूँ, फिर कहता, मैं कहा आपने कोई, पहले कहते जी मैंने कोई मेडिसिन का कुछ किया हुआ है। मैंने कहा क्या किया हुआ है? फिर कहते मैं फार्मासिस्ट हूँ, फिर खुद ही कहते मैं फार्मासिस्ट भी नहीं हूँ, फिर कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं 20 साल डॉक्टर्स के साथ काम करता रहा हूँ। मैंने कहा ये कोई जवाब तो नहीं है, डॉक्टर्स के साथ काम करते रहे हैं।
और फिर कहते हैं मेरी सिस्टर डॉक्टर है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी सारी, बल्कि मैं डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ, मैं कहा नवीद साहब आपकी सारी फैमिली भी डॉक्टर हो, आप कैसे डॉक्टर, मतलब कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है आप कैसे किसी को इंजेक्शन लगा सकते हैं, किसी का चेकअप कर सकते हैं, किसी की डिलीवरी करवा सकते हैं, या किसी को यहाँ पे जो है स्टीरॉयड के टीके लगा सकते हैं। उन्होंने बड़े मंतक, बड़े जवाब पेश किए कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, MBBS डॉक्टर की इतनी जो है वो फीसिस हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताएं अगर MBBS डॉक्टर की इतनी फ़ीस है तो क्या मोची से जाके दवाई ले लूँ या मैं दवाई देने शुरू कर दूँ? उन्होंने कहा आप कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा भाई आप कैसे दे सकते हैं? खुद मान भी रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन बता रहे हैं कि जी लोगों के पास पैसे नहीं है। और देखें मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे मौजूद हम फिर एक दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, वो MBBS से, उन्होंने बताया कि मेरे पास लोग नहीं आते, यहाँ पे जाते हैं और ये स्टीरॉइड्स के टीके लगाता है, फौरी तौर पे आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका देर पा जब आपको नुकसान मिलने लगता है, चीज़ें आपके लंग्स पे या आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे असर करती हैं, आपको तब पता लगता है। लेकिन वक्ती तौर पे तो आपको जब एक स्टीरॉइड का टीका लगेगा आप फौरी तौर पे फ्रेश फील करने लग जाएंगे। वहाँ पे बहुत रश था, ख़वातीन बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद थे, और वो शख्स खुद मान रहा है कि मैं ना डॉक्टर हूँ, बस मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि मैं 15-20 साल डॉक्टर के साथ रहा हूँ और मैं इस वजह से बस मैंने काम सीख लिया। ये वही हिसाब है कि आप कितनी अफसोस की बात है मियाँ साहब कि लोग ऐसे मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी नहीं लेके जाते कि जो मैकेनिक ना हो ताई हो बस ऐसे ही फड़ लूँ। और मैं इसके ऊपर आपसे सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये बात कि मुझे ये बताइएगा कि कोई इसने आपको ब्राइब देने की कोशिश की? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस टाइम ना बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि मैंने जब इसकी वो दिखाई तो वहाँ पे कोई 100-150 सिरिंज लगा हुआ था, मतलब कि एक बॉक्स है उसमें 40-50 सिरिंज थे, दूसरे बॉक्स में 40-50 सिरिंज थे, वहाँ पे लोगों को ग्लूकोज लगा रहा था, पता नहीं क्या क्या लगा रहा था। पहले इसने कहा अली भाई बस कर दें मेहरबानी, अली भाई अब ना करें मेहरबानी करें। फिर इसने कहा कि आप ये कैमरा बंद करवाएं, कैमरा बंद करवाएं। अब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हमें पता होता है कि अब ये हर तरह की कोशिश करेगा, फ़ोन्स करवाएगा, आपको हर तरह की पेशकश करने की कोशिश करेगा, किसी तरह से जान छूट जाए। तो उसमें ये हर चीज़ करता रहा कि भाईजान आपकी मेहरबानी है, ऐसे कर लें। इसके बावजूद भी आपने वो पूरा प्रोग्राम चलाया, हमने प्रोग्राम चलाया, और मेरा ख्याल है कि आप पे उसने जो ये हमला किया उसकी बड़ी वजह ये थी कि उसने कहा ये दोबारा से देखें। मैं बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूं कि मुकामी DDHO ने ये क्लिप्स वायरल होने के बाद भी उसको सील नहीं किया। मुकामी DDHO ने जो भी है, मतलब कि वहाँ पे जो मुकामी इंतजामिया थी उनकी नाक के नीचे ये बंदा बैठ के बता रहा मैं 4-5 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ। ये आपका जो क्लिप था ये मिलियन के ऊपर चला गया, पंजाब हेल्थ कमीशन को ख्याल नहीं आया, महकमा सेहत को ख्याल नहीं आया, और मुतलका DDH वाघा टाउन को ख्याल नहीं आया कि इस क्लिनिक को जाकर, या क्लिनिक नहीं अस्पताल को सील कर दें। सर अस्पताल क्या, जहाँ पे एक मैकेनिक बैठा है, मैं तो उसको मैकेनिक कहूँगा जो बंदे खोल के जो है उसको सेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। और मैं आपको शायद याद हो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मियाँ साहब हमने इस पर प्रोग्राम किया है, कोई लोकल इंतजामिया के जो है कान पे जूं नहीं रहेंगी तो इस पर कुछ करें, क्योंकि आप माशाल्लाह एक बड़ा नाम है मेडिकल की फील्ड का, और आप जब गए हैं उसको पता लग गया कि अब जो है ना काम जो है सीरियस हो जाएगा। बिल्कुल अली यहाँ पर रुकना। नाज़रीन एक क्लिप आपको दिखाते हैं जो अली ने जो लाहौर पूछता प्रोग्राम किया था, और इसी ताई मैकेनिक के साथ जब इसने इससे टॉक की थी। आप क्लिप देखें और उसके बाद फिर बात करते हैं। डॉक्टर नवीद साहब है सर, आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? अच्छा 2 मिनट। डॉक्टर नवीद साहब जो हैं वो इस टाइम एक पेशेंट चेक कर रहे हैं। ये उनकी छोटी सी एक फार्मेसी है, और ये सामने एक बच्चा जो है वो अद्वयात जो है उसको पीस रहा है। अभी इनसे पूछते हैं कि ये कोई डॉक्टर हैं या कोई अताई हैं। क्या बनाया बेटा? मछलियों का खाना बनाया। और ये डिस्पेंसरी है? हाँ। या आप यहाँ पे ये जो लेके आए ये दवाइयाँ लिखी दी हैं ना अभी डॉक्टर साहब ने। ये देखें नाज़रीन, एक छोटे से किचन में ये देखें, ये अभी बच्चा ये दवाइयाँ भी देगा। ये यहाँ का फार्मासिस्ट है, और साथ वो मछलियों का खाना बना रहा है। मछलियों का खाना बना रहे हो? हाँ जी। और ये दिखाएं वेस्ट, मेडिकल वेस्ट दिखाएं। बेटा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं पढ़ रहा हूँ मैं। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में बच्चा है, और ये यहाँ पे जो है अभी एक और पर्ची आ गई है दवाई के हवाले से। ये अभी वो पूड़ियाँ बनाएगा, और ये अभी ये बच्चा जो है यहीं पे ये मछली का खाना बना रहा है। मछली क्या खाती है? ये अजवाइन वगैरह? ये क्या चीज़ है? खाना उनका। मछली का खाना, यहीं पे मछली का खाना और इंसानों की अदवायात। क्या हाल है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब क्या तारुफ है? आप पहले अपना तारुफ ज़रा पूरा कराइएगा। नवीद नवाज। नवीद नवाज या डॉक्टर नवीद नवाज? डॉक्टर नवीद नवाज। MBBS है? नहीं। फिर आप क्या हैं? मैं LHV जो आप कहते हैं, जो आप LHV? LHV नहीं है,
मैंने डिप्लोमा किया हुआ था किस चीज़ का? ये अपना मेडिसिन का। मेडिसिन का? और मेडिसिन का डिप्लोमा किया? जी, मतलब क्या फार्मासिस्ट है? फार्मासिस्ट। तो आप कैसे ये क्लिनिक बना सकते हैं? चलें, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप ठीक करें गलत करें? मैं गलत कर, देखिए मैं कितने एहतराम से बात कर रहा हूँ। आप ऐसा है, ऐसी है। हमने इंतजार भी किया आपका, हमने आपकी प्राइवेसी भी खराब नहीं की। हाँ जी, आप फार्मासिस्ट हैं? जी। आपकी क्या वो डी फॉर्म का कहाँ है वो घर पे। मुझे नहीं लगता कि आपने वो भी किया। अच्छा, आपने किया हुआ है, ये देख लीजिए। अच्छा, ये बंद, 1 मिनट बंद करेंगे, 1 मिनट, आप बताएं, आप ऐसे बता दें, 1 मिनट बंद करेंगे सर। मुझे आप बताएं, मैं असल में बंद करेंगे, हम आपकी जगह पे आप हमें बंद ना कर। नहीं करता है इसको, 1 मिनट अच्छा चले, पहले आप मुझे भाई, 1 मिनट, आपने डी फॉर्म का भी आप 1 मिनट क्लोज करेंगे, आप बताएं, आप मुझे आप 1 मिनट क्लोज करो, आप इसको, आप इस तरफ आएं, अगर आप हक पे बैठे हुए ना, मैं ये डिलीट करके चल जाऊंगा, हम अप्रिशिएट करके जाएंगे। भाई मैंने एक्चुअली मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, किसी से? हर डॉक्टर के साथ, लाइक 1-2 नाम बता दें। डॉक्टर हारून रशीद, डॉक्टर अबाज अहमद, ये कहाँ होता है? सनाउल चिश्ती, ये गंगाराम में होते थे। अच्छा, तो आपने इनके साथ क्या काम किया? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, लाइक सेक्रेटरी में मैंने काम किया है, मैंने मेडिसिन में काम किया है, उसमें क्या काम करते थे? मेडिसिन वगैरह इनके साथ मैं डील करता था। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए? डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, आपको भी पता उनकी कितनी फीस है। इसका क्या मतलब है कि फिर मैं भी दवाइयाँ देने लग जाऊँ? आप ऐसे दे सकते हैं, आप कैसे दे सकते हैं? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। बगैर डिग्री के यार। ये देख सकते हैं कि मैं अपने डॉक्टर्स के साथ पहले वर्किंग करता रहा हूँ। दिखाएं क्या, दिखाएं, कुछ तो आपके पास होगा ना, मॉरल ग्राउंड पे कर रहे होंगे। ये बताएं, आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं हैं? आप फार्मासिस्ट नहीं? अभी आप कहते हैं फार्मासिस्ट। भाई, मैंने मुख्तलिफ मेडिसिन की कंपनी में भी काम किया हुआ है। आप फार्मासिस्ट हैं या नहीं? भाई मैंने वही आपको आपने बताया। पहले कहा मैं फार्मासिस्ट हूँ, आप फार्मासिस्ट हैं या नहीं है? नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि इस जो ये मिनी हॉस्पिटल आपने बनाया हुआ है, इसको कितना अर्सा हो गया? मुझे 4 ईयर हो गया। 4 ईयर्स? कोई DDHO कोई नहीं है? कोई हेल्थ केयर कमीशन, कोई DDHO? वो भी डॉक्टर हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी डॉक्टर आपकी सिस्टर डॉक्टर? इसका कैसे, इसका डॉक्टर साहब आपकी सारी फैमिली डॉक्टर हो, आप कैसे डॉक्टर हो बगैर डिग्री? चलें, नवीन भाई, आप मुझे बताएं कि ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? आप इसको तो बंद कर लेना। प्यार से तो कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात, कोई एक मंतक और लॉजिक दे दें कि आपने यहाँ पे हर चीज़ रखी हुई है। ये देखें, स्टेथोस्कोप है, उसके बाद ये ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आप इंजेक्शन, आपकी वेस्ट क्या है? ये इनकी वेस्ट आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, नहीं गिरा नहीं रहा, उसमें दिखा दें, वो दिखाएं 1 मिनट दिखाइएगा, सिर्फ 1 मिनट दिखाइएगा, यहाँ पे ऊपर रख दें। ये देखें नाजरीन, इसमें मेरा ख्याल है को 30-40 रिंजेस मौजूद हैं। तो आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। भाई मैं नहीं खेल रहा। आप नहीं खेल रहे? नहीं खेल रहा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे कोई DDHO, यहाँ पे कोई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कोई बंदा कोई आया ही नहीं आपसे पूछने? क्या बस कोई चीज नहीं, आप डॉक्टर बने? भाई मेरी सिस्टर बैठती थी यहाँ पे और उनके साथ मैं बैठता हूँ। तो फिर आप डॉक्टर बन गए? मैं डॉक्टर नहीं बन गया भाई, ऐसे नहीं। फिर आप कैसे? भी 2 बंदों को मेरे सामने आपने इंजेक्शन लगाया है, मैं देखें आपकी प्राइवेसी का वो ख्याल करते हुए मुझे तो लग रहा था कि शायद अंदर डॉक्टर साहब होंगे, बाकी काम बच्चों से करवा रहे हैं, वो एक और चीज़ है। यहाँ पे लोग बच्चे लेके आ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं है, आप फार्मासिस्ट भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप डॉक्टर्स के साथ बैठते थे, आप डॉक्टर बन गए। ओके, डॉक्टर उनसे गलती नहीं होती यार, उसके पास कम से कम डिग्री तो है ना, वो उसको प्रैक्टिस करने का अहल तो है ना, आपकी प्रैक्टिस करने के अहल नहीं। आप मुझे नाज़रीन, आपने क्लिप देखा और क्लिप में वाज़ह तौर पर वो मान चुका है कि उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और क्लिप में बाकी सारी चीज़ें और किस तरह वो ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो मान चुका है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाहौर पूछता प्रोग्राम करने के बाद भी
जब ये सील नहीं हुआ और मुझे पता चला तो फिर मैं इस प्रोग्राम को अपना जो लाहौर जोन का प्रोग्राम और इसकी स्पेशलाइजेशन यही है कि इस प्रोग्राम की हम क्वैक्स के ऊपर ही प्रोग्राम करते हैं, ताई और मैकेनिकों के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं। तकरीबन 3 से 4 साल से ये प्रोग्राम जारी है। तो मैं अली से बात कर, अली अब सवाल ये है कि एक तो ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको सील करवाया, इस क्लिनिक को सील भी करवाया, मुबारकबाद भी दूंगा और शदीद अल्फाज में एक बार फिर से मजम्मत करूंगा जो उसने हरकत की आपके साथ, और वो जिस तरह से मौका पर इसको रेस्ट भी करवाया और सील भी करवा दिया। सर ये आपने अब ये है कि देखिए मिलियन होने के बावजूद भी जो है वो किसी अथॉरिटी की जानिब से इसको सील नहीं किया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सील है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं ये करना चाहता हूँ कि जब हम जाते हैं इन क्लिनिक के ऊपर, या इनको बेसिकली बुनियादी तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इनको क्लिनिक नहीं कहता है, इनको अड्डे कहता है, ताइयों के अड्डे। जब हम इन अड्डों के ऊपर जाते हैं तो हमें जो है ना एक रिएक्शन पब्लिक का मिलता है कि आप गलत कर रहे हैं, ये आप ना करें, इसको बैठने दें, हम इनसे सस्ती दवाई लेते हैं। तो मैं आपसे सवाल करना ये चाहता हूँ कि क्या ये पब्लिक हमें ठीक कहती है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा? देखें मुझे उसी रोज़ एक MBBS डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं पता कि ये जो अताई होते हैं इनके साथ कर क्या रहे होते हैं, इन्हें लगाएंगे जो स्टीरॉइड्स के टीके लगा देंगे, आपको ऐसी अदवायात देंगे जो मौके पे आपको वक्ती तौर पे बड़ी जल्दी असर कर जाएगी। आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि ये लोग दिन में गिनती के इन्होंने टीके रखे होते हैं कि एक पेशेंट आ गया इसको 2 टीके लगा दें, फलाना आ गया 2 टीके लगा दें। उसका फौरी तौर पे तो हो सकता है कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन आपको हो सकता है कि 1 माह बाद 1 साल बाद उसका कुछ साइड इफेक्ट भी आएगा, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट नहीं है। आप इनसे जाके इवन के पैनाडोल या कोई किसी भी सिरप का कोई फार्मूला पूछेंगे, इसे नहीं पता। मैंने इसे पूछा कि यहाँ पे बुखार की दवाई आप कैसे देते हैं, आप तो डॉक्टर नहीं है। इन्होंने कहा ये बॉक्स जो है बुखार की दवाइयों का है, ये बॉक्स जो है गला ख़राब का है, मतलब कि निशानियाँ लगाई हुई हैं। और मैं हैरान हूँ, ये जहालत भी है और दूसरा अब गुर्बत भी है, लोग इतने परेशान हैं। अब उन्हें जहाँ पे 100-200 आप देखें ना, एक डॉक्टर है उसको पता है कि यार मैं इसको जो चीज़ दे रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार भी हूँ, मैं इसको वो चीज़ दे रहा हूँ जो इसको ज़रूरत है। एक अताई जो वहाँ पे फ्रॉड करने बैठा हुआ है, उसको जो मिलेगा उसके लिए वही इनफ है। वो 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया लेके आपको कुछ भी लगा देगा। और देखें कि मियाँ साहब ये कितनी हसास और ख़तरनाक बात है कि हम एक शख्स पे भरोसा करते हैं, वो आपको जो इंजेक्शन लगा रहा है वो जहर का भी हो सकता है, वो जो आपको गोली दे रहा है वो जहरीली गोली भी हो सकती है। मैं इसके ऊपर भी आपको बताता हूँ कुछ केसेस। लेकिन एक बात नाज़रीन, एक और मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, लाहौर पूछता प्रोग्राम का जो क्लिप है इसी ताई के साथ जो किया है, जिसमें ये स्पेसिफिक ये क्लिप है जिसमें अली हमजा जो लाहौर पूछता प्रोग्राम के एंकर पर्सन है उनको बाकायदा तौर पर ब्राइब देने की कोशिश की है। नाज़रीन ये क्लिप देखिएगा। आप थोड़ा सा क्लोज करो यार, इसको थोड़ा सा क्लोज करो। मैं इनसे 2 क्वेश्चन करूंगा, बाद में आप इसको ओपन कर बीच में कर लें, नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं ना, बंद करें। आप एक काम करो, एक MBBS डॉक्टर ले हो, ठीक है, 106 बुखार वाला पेशेंट उसको भी दो, 106 पे बुखार वाला मुझे भी दो। विद इन 5 मिनट पेशेंट आप अपना ठीक ले लेना। कोई मेडिसिन नहीं, आप देखो मेरी बात बाबा जी हैं, बाबा जी की बात नहीं क्या है। करते हैं? अब वो वही बात, रेहान मेरा स्टूडेंट है, रेहान को रेहान होता है ये अपना क्या नाम उसमें और हम न्यूज़ नहीं है। ये सारे तारुफ क्यों करवा रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? भाई मैं पुलिस लाया हूँ सर, मुझे बताएं मैं किसको लेके, मुझे दुख हो रहा है कि आप यहाँ पे टीके लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि आप टीम थाई को भेजे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो प्रोग्राम करने है। बता दें, मैं अपनी टीम को बुला लूँ, अच्छा नहीं लगता उन्हें। नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरा माइक खराब करा दें। सर आप खुद बताएं कि एक वकील बगैर डिग्री के आपका केस कहीं पे लड़ सकता है? आप खुद किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे या अपने बच्चे का जिसके पास डिग्री ना हो? आप मुझे क्या बात बता रहे थे कि 106 डिग्री बुखार का पेशेंट आपके पास लाएं और एक MBBS डॉक्टर के पास लाएं, आपने वो क्या दावा किया? छोड़ दो, आपने क्या दावा किया? आप बताएं, अगर आपके पास कोई हुनर है, आप कोई आलिम है, कोई बाबा है, कि हमें पता लगे कि ये साहब जो है इनके पास है। आपने कहा कि 106 बुखार का पेशेंट लाएं, आपने क्या दावा किया? अरे भैया छोड़ दो।
मैंने नाज़रीन आपने ये क्लिप भी देखा, अली से पूछते अली कैमरा बार बार बंद करने का क्यों कह रहा है ये? सर बार बार आपको पता है कि कैमरा बंद करने क्यों कहता है, उसमें उस दौरान में बल्कि कोशिश ही होती है, ये कोशिश तो अक्सर लोग कैमरे पे भी कर लेते हैं कि जी यार गाल करो ज़रा। वहाँ पे जो मुकामी जो इन लोगों ने वो रखे होते हैं लोग, वो अब किसी भी फील्ड से होते हैं, मतलब कि हो सकता है कि आपको किसी ऐसे बंदे का जो वहाँ पे लोकली इन्फ्लुएंस रखता हो वो आपको धमकियाँ देने लग जाएगा, फिर कैमरा बंद कराता है। मैं कहा यार हम कैमरा बंद करें, आप हमें बंद कर दें, आप हमें जो है मारने लग जाए जिस तरह आप पे वो टूटा है। बहुत से लोग यही इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे कैमरा बंद हो। अब हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि हम इसकी ना शैतानियत आवाम के सामने लाएं कि जिस तरह से ये अदारों को मैनिपुलेट करके और यहाँ के मुकामी लोगों को मैनिपुलेट करके यहाँ पे एक अरसे से बैठा है, जाहिर बात है ये कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो उसमें मैंने अपनी टीम को इशारा किया कि आप अपनी ना लाइट्स ऑफ कर दें। हमने लाइट्स ऑफ की तो ये फिर उसमें कि अली भाई मेहरबानी करें आप इस तरह कर लें, आपकी ये वो मौजूद है, हमने वो भी क्लिप प्रोग्राम में चलाया कि ये पकड़ा गया और ये इंसान के अंदर का चोर होता है कि जब आप पकड़े गए हैं तो आप अब अगले को कह रहे हैं कि यार अच्छा मैं गलत हूँ, मैं चोर हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी आप ऐसा ना करें। हमने वो भी चीज़ जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाई, वो भी लोगों को दिखाई कि किस तरह से ये हमें जो है उल्टी सीधी ऑफर्स करता रहा, किस तरह से फिर इसने उसके बाद एक और भी पैंतरा अपनाया, उसके बाद ये गुस्से में भी आ गया, फिर ये धक्के भी देने लग गया, ये सब कुछ करता। अच्छा आपको भी धक्के दिए? हाँ जी, लेकिन ये इस नौयत पे नहीं गया, ये इसने हर चीज़ वहाँ पे कोशिश कर ली, फ़ोन करवाऊंगा, जो भी कोई ऑफर्स करने की, फिर उसके बाद गुस्सा करने की, फिर कि मेहरबानी करें। लेकिन आपने ये पूरा प्रोग्राम लाहौर पूछता इस ताई के खिलाफ जो किया था, पूरा प्रोग्राम ऑन एयर किया आपने? पूरा प्रोग्राम चलाया और उसके बाद जो दीगर वहाँ पे जो अताई मौजूद थे, कोई एक्स मौजूद थे, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और इसमें जो एक्टिविटी हुई हमने सारी जो है अवामुन्नास और लोकल इंतजामिया के सामने रखी कि देखें लोग किस तरह से आवाम की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कल को इनसे कुछ हो जाएगा। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। 2 केस हैं, एक मुल्तान चुंगी का ये जो एरिया, यहाँ पर एक बच्चे के खतने किए गए और वो बिल्कुल खतने गलत कर दिए गए, बच्चे की जिनसी तौर पर ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी गई। इसी तरह एक और केस है, वो भी मुल्तान रोड के ऊपर है कि एक अताई ने एक मरीज़ को इंजेक्शन लगाया तो उसकी एक पूरी साइड पैरालाइज हुई। वो मरीज़ मैंने वो पिछला प्रोग्राम मेरा चल चुका है इसके ऊपर। और मियां साहब अच्छा बात करेंगे ये कि जब इनसे कोई भी मरीज़ की हालत को गैर होने लगे या उन्हें लगे कि अब मामला जो है निकल गया, उस टाइम फौरी तौर पर इन्हें हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे। और वो जो इलाके के लोग होते हैं उन्हें इस अताई पे इतना यकीन होता है, वो हॉस्पिटल जाके लड़ते रहते हैं कि आपने हमारे बंदे के साथ ये कर दिया। अताई पे फिर भी बात नहीं आती कि जी हमारा मल्लेदार ऐसे नहीं कर सकता, हमें इससे जो है सुकून मिल जाता है, आराम मिल जाता है। भाई जिस बंदे ने आपको जाते ही 2 स्टीरॉयड के टीके लगाने हैं तो आपको उससे अच्छा आप समझते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, तायद खत्म होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक यानी कि ये ऐसा काम है जो आप मौत का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कि एक बंदा आपके पास इस हालत में आ रहा है जिसकी मतलब कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो ज़िंदगी और मौत के कश्मे में है, और आप सिर्फ अपना 200-300 निकालने के लिए उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उसको उल्टे सीधे टीके लगा रहे हैं और आप उसके भरोसे का एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या आप जा रहे हैं, एक भाई कैमरामैन जा रहे हैं, इन्हें तो नहीं पता कि डॉक्टर साहब इन्हें क्या टीका लगाने लगे हैं। ये एक भरोसा है, ये उस पर यकीन है कि यार इसने कुछ 4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इसका ईमान है, इसने हल्फ उठाया हुआ है, ये गलत चीज़ नहीं लगा सकता। हम उसे कभी भी नहीं पूछा कि भाई आप क्या टीका लगाने लगे हैं, वो हमें बेशक जहर का लगा दे और हम उसको इतबार करते हैं। और ये जो अताई हैं ये पानी का टीका भर के लगा दे, हमें नहीं पता, हमने कहना ठीक है ये ठीक कर रहा है। तो अली जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद इसको यानी कि इसने कोई आपसे कहा था कि ये प्रोग्राम के बाद ये काम छोड़ देगा, ये काम नहीं करना चाहता? सर कोई ऐसी बात? ये कह रहा है, मैंने इसे यही कहा कि आप यही कह दें कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। उसमें ये सब चीज़ें कह रहा है कि मैं किसी डॉक्टर को बैठाऊंगा, ये करूँगा। और हम ऑन कैमरा ही बाहर आए थे क्योंकि मुझे था कि ये कोई हमला ना करे या कोई मुकामी लोग, आपको पता है कि अताई पे रेड करें या प्रोग्राम करने जाए तो मुकामी लोग हमला कर देते हैं। हम ऑन कैमरा ही जो है वो इसके क्लिनिक से बाहर निकले और हमने इसकी तमाम एक्टिविटीज़, जितनी देर हम वहाँ पे रहे, जितनी देर वहाँ पे मरीज़ चेक करता रहा, हम उतनी देर बच्चों से बात करते रहे। बच्चों से पूछा कि बेटा आप तो 8वीं-9वीं जमात के बच्चे हैं, आप सोचें कि वो 8वीं-9वीं जमात का बच्चा कोई गोली डाल दे, उसको पता ही नहीं है, मतलब कि वो है भी मासूम, उसको तो नहीं पता, वो कोई गोली डाल दे और उससे कोई किसी को कोई मतलब कि नुकसान हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? बहरहाल ये चल रहा है, लोगों का धंधा चल रहा है, लोगों को शर्म नहीं आती कि लोगों के बच्चों के साथ अच्छा, ये खिलवाड़ करते हैं। हम जो प्रोग्राम करते हैं क्या इस तरह के प्रोग्राम करने से ये ख़त्म हो जाएगी तायद? मुतलका महकमे तो बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर आपने प्रोग्राम किया, सील नहीं हुआ, मैं ज़बरदस्ती सील करवा के आया हूँ। और उसके बाद मैं ये भी बता दूँ कि इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, वो एक ख़त्म करते हैं दूसरा शुरू कर लेते हैं। महकमे तो बिल्कुल भी कोई इसके ऊपर जो उनका काम है वो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो अल्लाह पाक ने आपको आवाज़ दी है और ये आपके हाथ में एक जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे लगाई है, तो हम तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि अल्लाह करे एक दिन इन लोगों को खुद शर्म आ जाए, इन लोगों को शर्म आ जाए कि यार ये अपना बच्चा खुद चेक नहीं करते,
ये अपना बच्चा खुद चेक नहीं करते, लोगों के बच्चों को दे दनादन टीके लगा रहे हैं। अब इनसे सवाल यही हम किया करें अपने प्रोग्राम में भी, अपने कितने मरीज, अपनी फैमिली के मरीज कहाँ से चेक करवा। मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम इस शख्स ने हमें बातचीत शुरू की तो इसने मुझे कहा, अली भाई मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक मरीज आप, अब ये देखें कोई डॉक्टर ये बात कर सकता है? हमारे पास वो क्लिप पड़ा होगा, मैं दूंगा, वो आप चलाइएगा। इसने मुझे ये बात की कि अली भाई आप एक मरीज मेरे पास ले आएँ और एक MBBS डॉक्टर के पास ले आए, मैं मरीज आधे घंटे में ठीक कर दूंगा, बेशक उसको 104 बुखार हो। अब देखें जिस बंदे को पता है कि उसने उसको स्टीरॉइड के टीके लगाने, उसको ताकत, एक MBBS करने के लिए आपको पता ये कितने खुद कह रहा सालों है। की मेहनत की जरूरत है, और ये कह रहा है कि मैं मतलब कहता है मेरे पास ऐसी ट्रिक है, मेरे पास ऐसी जो है ना वो गिदर सिंगी है कि MBBS डॉक्टर के पास जादू की छड़ी है। हाँ जी, कहता मैं आधे घंटे में जो एक नौजवान जिसको कोई 104 102 बुखार है, मैं उसे आधे घंटे में ठीक कर दूंगा। आधे घंटे में कैसे ठीक होगा? जब आप उसको उल्टे सीधे टीके लगाएंगे, वो वक्ती तौर पे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसका जो आपको वक्त की जरूरत है, साथ साथ आपके ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा, उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो आपसे उस टाइम मौके पे 200-400 रुपया लेके निकल गया, लेकिन ये जो आपके साथ जुल्म कर रहा है, वो आप किसी MBBS डॉक्टर, मैं तो चाहूंगा आप इसी प्रोग्राम में किसी MBBS डॉक्टर को लें और पूछें कि ये किस तरह से अवामुन नास के साथ जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं।